Students, good morning students. In the previous video we have started the chapter the realms of earth, and afterwards we have studied about the continents. So we have 7 continents. We have studied about them in detail. So students, today we are going to start about major landforms. Students, landforms क्या होते हैं? You are living in Nahan. In your surroundings you can see mountains, you can see hills, and then when you go to Narayangarh, Ambala, Chandigarh, you can see plain area over there, है ना. So there is a difference. So they are known as landforms. जो difference हम अपनी surroundings में देखते हैं, land में देखते हैं, that is landforms. Some parts of the earth are high above the sea level and some have steep slopes and rough surface, but some parts are smooth and flat with slopes. So students, various kind of places are there. We see some parts क्या हैं, हाई हैं, लो हैं, प्लेट्यू हैं, हार्ड हैं. So students, there is a difference. The difference in the height and slopes of the land surface is known as the major landform. So students, the difference in the height and slopes of the land surface is known as landforms, जो मैंने आपको अभी बताया भी था. Okay, the major landforms are grouped as mountain, plateaus and plains. So students, आपके सामने mountains है, plains है, plateau है, आप easily उसमें difference कर सकोगे ना. So these are the major landforms. So mountain, number 1, mountain we will study. A mountain or a hill is an uplifted portion of the land surface. अब mountain और hill क्या है? Uplifted portion है, थोड़ा सा जो ऊपर उठा हुआ portion होता है land surface का. The uppermost part or portion of a mountain or a hill forms the peak. So uppermost part is known as the peak. ये देखो, ये जो uppermost part है, this is known as जो sharp है, peak. Most of the mountains are arranged in a line, which has a series of peaks and valleys. स्टूडेंट्स, आप अपने घर से व्यू देखते हो, जमटा वाला व्यू देखते हो, क्या वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल माउंटेन है? ऐसा तो नहीं है ना, बहुत सारी माउंटेन्स हैं. सो दैट सीरीज ऑफ माउंटेन्स इज नोन एज रेंज. अब देखो ऐसे होती है रेंज, एक के बाद एक, ठीक है. The old mountains are those which have been worn down by the forces of nature and do not have sharp peaks. अब जो old mountains होती हैं स्टूडेंट्स, वो कैसी होती हैं? उनमें sharp peaks नहीं होती, ठीक है. अब जैसे ये मान लो ये mountain है, ठीक है, हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, तो ये जो कटिंग कर देती है, जो एयर होती है ना, इनकी कटिंग कर देती है, तो वो राउंडेड हो जाती हैं यहाँ से. ओके, सो दीज आर ओल्ड माउंटेन्स. The Aravalli Range in India, the Ural Mountains in Russia and the Appalachians in USA are the examples of old mountains. So ये जो अरावली इंडिया में है, रशिया में यूरल है, और उसके अलावा क्या है, Appalachians है USA में, ये क्या है, old mountains हैं. Now students, the young mountains were formed during the recent phase of mountain building about 25 million years ago. अब जो students young mountains हैं, वो क्या है, कैसे फॉर्म हुई थी? रिसेंट भी कोई ऐसा नहीं है 1-2 साल पहले, 25 मिलियन ईयर्स अगो. दे आर वेरी हाई एंड देयर शार्प पीक्स आर कवर्ड विद स्नो. तो ये बहुत ज़्यादा हाई हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, दे आर सो हाई, और इनकी पीक्स भी क्या है, शार्प हैं. द हिमालयाज इन एशिया, द एल्प्स इन यूरोप, द एंडीज इन साउथ अमेरिका एंड द रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका आर इम्पॉर्टेंट यंग माउंटेन्स. सो एशिया में कौन सी है? हिमालयाज, जो इंडिया में भी है, राइट. यूरोप में है एल्प्स, साउथ अमेरिका एंडीज, नॉर्थ अमेरिका रॉकीज. सो ये क्या है, यंग माउंटेन्स है. स्टूडेंट्स, अगर डिफरेंस आपके पास आता है, 3 पॉइंट्स आर गिवन हियर, यू कैन राइट दैट डिफरेंस ऑल्सो. नाउ डू यू नो, Mount Everest is the highest peak of the world and it lies in Himalayan mountains. Okay, its height is 8,850 meters above the sea level. It is located in Nepal. So students, जो हिमालयन माउंट एवरेस्ट है, वो क्या है, हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, ठीक है, और ये क्या है, हिमालय माउंटेन्स में है, जो क्या है, नेपाल में सिचुएटेड है ये. ओके, प्लेट्यू. अब प्लेट्यू क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने मूवी देखी है बाहुबली? उस मूवी में जब बिगनिंग का सीन आता है, जब वो जो हीरो है वो शिवलिंग भी उठा लेता है, दैट सीन, कितना रफ सा पत्थर वाला एरिया है वो सारा, है ना, दैट इज़ नोन एज प्लेट्यू. वैसा होता है प्लेट्यू एरिया, ठीक है. प्लेट्यू, अ प्लेट्यू इज़ एन अपलैंड विद रगेड सरफेस. ऊपर उठा हुआ लैंड की सरफेस है, ज़्यादा हाइट नहीं होती, पर ऊपर उठा हुआ होता है, ठीक है, और रगेड, पथरीला होता है बहुत ज़्यादा. इट इज़ लाइक अ टेबल लैंड अपलिफ्टेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग. अब जैसे एक आपने घर पे अपने फ्लोर पे टेबल रखा है, ठीक है, वो ऊपर उठा हुआ होता है ना आपकी सराउंडिंग से, और ऊपर से फ्लैट होता है. लाइक वाइज प्लेट्यू भी ऐसा ही होता है.
ओके, द एवरेज हाइट ऑफ अ प्लेट्यू इज 600 मीटर्स अबव द सी लेवल। एवरेज हाइट क्या होती है प्लेट्यू की? 600 मीटर्स, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता बट 600 मीटर्स। ओके, देन नियरली 40% ऑफ टोटल लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ इज प्लेट्यू। अब 100% लैंड सरफेस है, उसमें से 40% क्या है? प्लेट्यू है। द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत ऑल्सो कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड। सो तिब्बत का जो प्लेट्यू है बहुत ज़्यादा हाई है और क्या है, उसको क्या बोलते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ सिचुएटेड है वो? सी लेवल से 5000 मीटर्स ऊपर सिचुएटेड है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। एंड देन the Deccan Plateau in India, the Arabian Plateau and the Brazil Plateau are some of the large plateaus of the world. So India में Deccan Plateau and Arabian Plateau, in the world Brazil Plateau, ये क्या है? large plateaus के examples हैं। और जो ये plateau area होता है ना, ये students बहुत ज़्यादा mineral rich area होता है and it is known as the storehouse of minerals। iron ore भी वहाँ मिलता है, gold भी वहाँ मिलता है। okay, now plains. A plain is a relatively low-lying flat land. The slope of a plain is gentle and its average height is between 100 and 200 meters above the sea level. So students, plain area क्या होता है? थोड़ा सा low lying होता है। आप देखते हो कालाम से आगे आप जाओगे, plain area नज़र आता है ना आपको, बिल्कुल flat surface है ना, rich soil है, agriculture होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और वहाँ का स्लोप क्या होता है? जेंटल। स्लोप क्या है? जेंटल स्लोप है। हाइट कितनी है? 100 से 200 मीटर्स अबव द सी लेवल, थोड़ा सा ही ऊंचा होता है बस। और क्या है? रिवर्स फॉर्म करती हैं उनको। रिवर्स क्या करती हैं स्टूडेंट्स? पहाड़ों में जब रिवर्स बिगिन होती हैं, ठीक है, तो वो नीचे की तरफ जाती हैं प्लेन एरियाज़ की तरफ, तो अपने साथ मिट्टी पत्थर ये सब कुछ ले जाती हैं, ठीक है, और नीचे जाके प्लेन एरियाज़ में जाके उनको डिपॉजिट कर देती हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है? प्लेन एरियाज़ फॉर्म होते हैं। द नर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैज़ बिन फॉर्म्ड बाय द गंगा रिवर सिस्टम। सो हमारे जो नर्दर्न प्लेन्स हैं, ये नॉर्थ इंडिया के पूरा प्लेन एरिया है, दैट इज़ फॉर्म्ड बाय गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ओके, दो अदर इंपॉर्टेंट प्लेन्स आर द ग्रेट चाइना प्लेन। सो अदर इंपॉर्टेंट प्लेन्स चाइना में भी है, द ग्रेट चाइना प्लेन, द इजिप्टियन प्लेन एंड द प्लेन ऑफ इराक। प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड, क्योंकि वहाँ सॉइल क्या होती है? फर्टाइल होती है। आप देख सकते हो डिफरेंस, आप नाहन में डिफरेंस देखो और प्लेन एरिया में डिफरेंस आपको नज़र आ जाएगा। अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर एंड एन आइडियल क्लाइमेट, तो सब कुछ वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, यही रीजंस हैं उसके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टुडे वी विल स्टडी अप टू हियर ओनली। आपने इनको अच्छे से स्टडी करना है और इनका डिफरेंस आपको खुद से पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।